A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last three videos, we completed all the practical concepts that is in preparation of realization account, the journal entries related to the realization account, closing of partners capital account, partners loan account, and loan to partners account. And we can see that how we will record the realization expense in the realization account, as well as we discuss the accounting treatment of workman compensation reserve on dissolution of partnership firm. So let's we start the first question of today's video related to the workman compensation reserve is, please see it very carefully. Question number 1, Manoj and Nand were partners sharing profit in the ratio of 3:2. Pass journal entry under the following situation at the time of the dissolution of firm. So it is clearly mentioned the journal entry at the time of the dissolution of the partnership firm. यानी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे, और दो पार्टनर है मनोज एंड नंद. And there are various conditions related to the workman compensation reserve which already discussed in the last video. So let's solve the question number 1 of your book. Question number 1 says that there are two partners, Manoj and Nand, and their profit sharing ratio will be 3:2. So let's pass the journal entries at the time of the dissolution of partnership firm related to the workman compensation reserve. So journal entries related to workman compensation reserve at the time of dissolution of firm. So the first journal entry will be workman compensation reserve is to 1 lakh. The first condition is workman compensation reserve is 1 lakh, and whereas there was no liability towards workman compensation. So to claim for workman compensation reserve is nil. So इस केस में मैंने आपको बताया था कि जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो और कोई क्लेम ना हो, तो सिचुएशन में यू नो वेरी वेल all the reserve will be distributed by partner in their old ratio. So the journal entry will be of workman compensation reserve account debit 1 lakh to M's capital to N's capital, and their profit sharing ratio will be 3/5 and 2/5 उनके PSR, and the amount is 60,000, 40,000. This is the first case. Case number 2. Case number 2 says that when workman compensation reserve is to 1 lakh and liability in respect of it was a certain 75,000. It means workman compensation reserve is 1 lakh, whereas claim for workman compensation is 75,000. So you know very well, जो 25,000 रुपए रिजर्व बचा है वो पार्टनर्स कैपिटल एंजॉय करेंगे. लेकिन मैंने आपको बताया था कंडीशन नंबर बी सी डी में एक एंट्री नहीं 2 एंट्री पास होगी. पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख है, उसमें से रियलाइजेशन यानी जितना क्लेम है रियलाइजेशन का वो है 75,000, और बाकी बचा एन और एन भी बचेगा 25,000. 25,000 को 3/5 2/5 को बांटेंगे. 2/5 15,000 10,000. एंड आफ्टर दैट आपको पता है कि इस क्लेम को हमें पे ऑफ भी करना है. क्वेश्चन में कहे या ना कहे, लेकिन आपको तो पे ऑफ करना है. सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना क्लेम है 75. So this is in case 2. Case 3.
Case 3 says that workman compensation reserve is 1 lakh, whereas the liability is also ascertained at 1,20,000. यानी यहाँ liability ज्यादा है. Workman compensation reserve is 1 lakh, whereas claim for workman compensation is 1,80,000. So you can see that आपके पास claim ज्यादा है, reserve कम है. इस situation में you know very well हम पहले क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. जितना भी रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है, रिजर्व तो 1 ही लाख है तो 1 ही लाख ट्रांसफर होगा, लेकिन क्लेम आपका कितना बन रहा है 120. तो आप पेमेंट कितना करेंगे, रिजर्व से 1 लाख और प्राइवेट फंड या रियलाइजेशन अकाउंट से कितना पे करेंगे 120. ये मैं समझाना चाह रहा था जब ये मैं टॉपिक समझा रहा था कि यही डिफरेंस है सारे केसेस में कि आप पे 120 करेंगे क्योंकि क्लेम तो 120. ओके, so this is a journal entry which are required to pass at the time of the case 3 when claim is higher than the workman compensation reserve. Case 4 पे आते हैं. Case 4 is very simple. Case 4 will be a when workman compensation reserve is 1 lakh, workman compensation reserve 1 lakh, whereas a claim for workman compensation is 1 lakh, यानी दोनों की वैल्यू सेम है. तो इसका मतलब आपने पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पूरा कहां ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में. वर्कमैन कंपनसेशन टू रियलाइजेशन 1 लाख और फिर क्लेम को पे ऑफ कर देना. सो सेकेंड एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख. So in the question number 1 you can see that how we will pass the journal entries which are related to the workman compensation reserve at the time of the dissolution of partnership firm. First case you can see that there is a no claim, so workman compensation reserve will be distributed by old partner in their PSR. Second, when claim is less than the workman compensation reserve, so first of all the required claim will be transferred to the realization account and balance of the workman compensation reserve must be distributed by M&N in their old ratio, and thereafter we pay the claim amount, that is in realization to bank 75,000. In the third case you can say that the claim is higher than the reserve. So in this situation पहले जितना reserve है उसको realization account में transfer करेंगे, फिर जितना claim बन रहा है उसको हम pay off करेंगे. एंड नंबर 4, जब आपका क्लेम और रिजर्व दोनों बराबर हो तो पहले आप सारे रिजर्व को रियलाइजेशन पे ट्रांसफर करेंगे और यहाँ रियलाइजेशन से बैंक करेंगे 1 लाख. यानी यू कैन सी दैट द डिफरेंस इज आप हमेशा जो दूसरी एंट्री पास करेंगे वो क्लेम अमाउंट से ही करेंगे. जितना क्लेम हो, चाहे क्लेम ज्यादा हो चाहे क्लेम कम हो, चाहे क्लेम इक्वल हो. केस 1 में क्लेम पेमेंट करने की एंट्री नहीं होती है क्योंकि वहां कोई क्लेम ही नहीं है. सो दिस इज एन क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 which are related to the recording of realization expense. So case question number 2 says that there are in this question there are 7 cases related to the realization expense. There are different cases are given in this question: case 1, case 2, case 3, case 4, and you have to record all these cases in the books of the firm at the time of the dissolution of the partnership firm related to the realization expense. So case question number 2 की भी जो journal entry है वो same as it is question number 1 की तरह ही पास की जाएगी, मतलब resolution के टाइम आपको ये entry पास करनी है. चलिए एंट्री पास करते हैं question number 2. So in the question number 2, the first case, expense on realization
rupees 8,000. So we have to pass the journal entries. Journal entries related to realization expense at the time of dissolution of or partnership. So first case will be a expense on realization 8,000. So it is a very simple case, you know very well. जब क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन ना हो कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को किसको पे करना है, पार्टनर फर्म की पार्टनरशिप फर्म एक सर्टेन रेम्युनरेशन देगी पार्टनर्स को, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो आपको पता है हम केस 1 अडॉप्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस भी किया है। सो journal entry will be a realization account debit to bank or cash. Amount is 8,000. Second case, when expense of realization 10,000 were paid by partner, यानी expense किसने पे किया, पार्टनर ने। So case 2 will be a पे किया पार्टनर ने। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स का नाम नहीं गिवन है। अगर पार्टनर्स का नाम गिवन होता तो पार्टनर्स के नेम से कैपिटल होता। अमाउंट इज 10,000। केस 3, realization expense of 12,000 were being met by Tushar, a partner, but were paid by a firm. यानी रियलाइजेशन एक्सपेंस 12,000 रुपए था जिसे तुषार के थ्रू मेट करना था, लेकिन पे किसने किया, पार्टनरशिप फर्म। सो इसका मतलब ये हुआ कि देने वाला कौन था, तुषार। तो तुषार की कैपिटल को डेबिट करेंगे और किसने पे किया, फर्म। ये कंडीशन हमने पढ़ा था कि जब पार्टनर को रियलाइजेशन एक्सपेंस देना होता है लेकिन फर्म अगर पे कर देता है तो उसकी ड्यू होती है पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक एंड अमाउंट इज गिवन इज 12,000। केस नंबर डी, Suresh a partner was paid remuneration of 10,000 and he was to meet all expenses. सुरेश एक पार्टनर था जिसे ये डिसाइड किया गया कि उसे 10,000 रेम्युनरेशन दिया जाएगा और वो ही सारा एक्सपेंस बियर करेगा। तो इट्स वेरी सिंपल कि सुरेश को ही बियर करना है सारा एक्सपेंसेस। तो पार्टनरशिप फॉर्म में सुरेश को कैपिटल देगी ना, तो वो उसका रिलेशन पे खर्चा हो गया। सो उसकी एंट्री क्या होती है, जब हम फिक्स रेम्युनरेशन देते हैं तो उसकी एंट्री होती है रिलेशन टू सुरेश कैपिटल। कितना रेम्युनरेशन हुआ था, 10,000। So you can see that all these things is very simple. That's condition number 4. Now we are moving to the condition number 5. Condition number 5 says that Viru, a partner, paid remuneration of 15,000. He was to meet all expenses. Actual expenses to 20,000 were paid by the firm. So it is very clear. Listen carefully. Viru एक पार्टनर था जो डिसाइड हुआ कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करेगा, सारा खर्चा बियर करेगा एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और उसे पार्टनरशिप फर्म एक फिक्स्ड रेम्युनरेशन पे करेगी एंड द अमाउंट ऑफ द रेम्युनरेशन इज 15,000, लेकिन एक्चुअल में खर्चा हुआ 20,000। अगर ये खर्चा 20,000 रुपए अगर वीरू खुद बियर करता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ इसने किसने पे कर दिया, पार्टनरशिप फर्म में। तो पहले समझिएगा इसको पहले में दो स्टेप में समझते हैं। पहला कि वीरू को 15,000 रुपए पार्टनरशिप फर्म देगी तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन एक्सपेंस टू वीरूज कैपिटल, 15,000 रेम्युनरेशन दे देगा। और दूसरा इस बात से समझिए कि वीरू को देना था, वीरू को दिया पार्टनरशिप फर्म ने 15,000 रेम्युनरेशन का दे दिया कि भैया तुम सारा खर्चा देखो, तुम्हें 15,000 में ही सारा खर्चा देखना है, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस हुआ 20,000 और उसे भी वीरू ने नहीं पे किया, किसने पे किया, फर्म ने। यानी फर्म ने पार्टनर्स के बिहाफ पे पे किया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जस्ट लाइक कंडीशन नंबर सी कि पे करना था पार्टनर को, पे किया फर्म ने, कितना पे किया, 20,000। सो आप चाहे तो दो एंट्री भी पास करते हैं या इन दोनों को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेट करने में क्या एंट्री पास होगा,
यू कैन सी दैट एक्यूमुलेट करने पे जो एंट्री मिलेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन पे कितना लॉस होगा 15,000, वीरू की कैपिटल होगी 5,000 और बैंक होगा 20,000। टोटल फॉर्म ने 20,000 दे दिया, जिसमें से 15,000 रुपये रियलाइजेशन का खर्चा था जो रेम्युनरेशन वीरू को देना था, वो तो सही है, लेकिन वीरू को देना था 15,000 और फॉर्म ने उसको उसके बिहाफ पे पे किया 20,000। जैसे हम आपसे कहें कि आपको मुझे आपको देना है 15,000 रुपये, लेकिन आपने मुझे किसी के थ्रू पेमेंट करा दिया 20,000, इसका मतलब आपके कैपिटल से कितना डिडक्ट करेंगे 5,000 डिडक्ट करेंगे। तो कॉमन सेंस की बात है कि पे करा था 15,000, फॉर्म ने उसके बिहाफ पे पे कर दिया 20,000, इसका मतलब 5,000 रुपये वीरू के कैपिटल से डिडक्ट करेंगे, इसलिए उसकी कैपिटल पर डेबिट किया है। और फॉर्म के लिए खर्चा कितना है रिलेशन 15,000, क्योंकि रेम्युनरेशन तो 15,000 पे बात हुआ था। तो इस तरह से आपको कंडीशन को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो या कंडीशन नंबर जो ई है 5th है, उसको आप 2 एंट्री पास करके भी सॉल्व कर सकते हैं या कोई 1 एंट्री पास करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द कंडीशन नंबर 6. रिलेशन एक्सपेंस 15,000 were paid by the firm, 10,000 were to be borne by partner and the balance by the firm। तो ये बहुत ही सिंपल है कि टोटल रिलेशन एक्सपेंस 15,000 हुआ, जिसे पे करना चाहिए था फर्म के थ्रू, जिसमें से 10,000 पार्टनर ने पे कर दिया और 5,000 फर्म ने पे किया। सो इन द कंडीशन 6 you can see that realization expense amounted to 15,000। जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि सर इसमें बॉन्ड किसे करना चाहिए था। बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि रिलेशन एक्सपेंस टोटल हुआ 15,000, जिसे पे किया फर्म ने 15,000 पे कर दिया। एक्चुअलिटी में ये कहा गया कि 10,000 वेयर टू बी बॉन्ड बाय पार्टनर, 10,000 पार्टनर को बॉन्ड करना चाहिए था, 5,000 फर्म को। इसका मतलब है सपोज ये फर्म है और ये पार्टनर है, 10,000 इसे बियर करना चाहिए था पार्टनर को और 5,000 रुपए फर्म को, लेकिन फर्म ने, ये ब्लू वाले ने क्या किया, पूरा का पूरा 15,000 दे दिया। इसका मतलब ये जो है ब्लू वाला ब्लैक वाले से यानी पार्टनर से 10,000 रुपए लेगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो पार्टनर है, नाम नहीं गिवन है इसलिए पार्टनर से यूज करेंगे, पार्टनर से फर्म को कितना लेना है 10,000 और फर्म को कितना बियर करना चाहिए था 5,000 भी बियर करना चाहिए था। तो जितना फर्म के लिए खर्चा है उसके लिए रिलेशन फंड ओपन है। जैसे यहाँ पे 8,000 फर्म के लिए था या 10,000, यहाँ फर्म के लिए खर्चा ही नहीं था, यहाँ फर्म के लिए 10,000 खर्चा था, यहाँ फर्म के लिए 15,000 खर्चा था, तो यहाँ फर्म के लिए सिर्फ 5,000 ही खर्चा है। टोटल रिलेशन एक्सपेंस 15,000 पे बात हुआ था, जिसमें 10,000 पार्टनर बियर करता, 5,000 फर्म बियर करती। तो लेकिन फर्म ने पूरा 15,000 ले लिया, तो इसका मतलब है फर्म ने 15,000 दिया, कोई बात नहीं है, वो 10,000 रुपए किससे रिकवर कर लेगी, पार्टनर से रिकवर करेगी। सो दिस इज एन केस नंबर 6. नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट केस ऑफ दिस क्वेश्चन, सो प्लीज सी इट वेरी केयरफुली। कंडीशन नंबर जी, Gauri, a partner, was allowed a remuneration of 25,000। गौरी एक पार्टनर थी एंड उसे अलाउ किया गया 25,000 आपको रेम्युनरेशन मिलेगा। ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस ऑफ फर्म, और उसे सारा एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा। फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000। सो ये तो बहुत ही सिंपल है कि फर्म ने 25,000 रुपए पार्टनर गौरी को दिया और फिर बाद में फर्म ने उसके बिहाफ पर 5,000 रुपए पे कर दिया। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए ध्यान से। इसको हम डबल, जैसे कंडीशन नंबर ई किया वैसे हम जी भी कर सकते हैं, इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। पहला फर्म ने रेम्युनरेशन कितना तय किया गौरी के लिए, उसकी एंट्री क्या होगी, रिलेशन टू गौरीज कैपिटल। कहा कि भैया हम आपको 25,000 रुपीज देंगे, सारा खर्चा बियर कर देंगे, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन फर्म ने गौरी के बिहाफ पर 5,000 रुपए दे दिया। भाई कहा सारा खर्चा तो गौरी को ही देखना चाहिए था, लेकिन किसने पे किया, फर्म ने 5,000 पे कर दिया, तो वो गौरी से लेगी, तो उसकी एंट्री क्या होगी, गौरीज कैपिटल 5,000 टू बैंक 5,000। तो आप चाहें तो ये 2 एंट्री पास कर सकते हैं
या तो इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, जस्ट लाइक कंडीशन नंबर ई, कंडीशन नंबर 5 जिसे हम कह सकते हैं। इनकी क्या होगी, सिंपल सा, फर्म के लिए खर्चा कितना है रिलायंस पे 25,000, फर्म ने गौरी के बिहाफ पे कितना पे कर दिया 5,000, इसका मतलब फर्म गौरी को कितना देगी 20,000। सो जस्ट लाइक अ कॉमन सेंस कि जाहिर सी बात है कि अगर हमें किसी को 25,000 रुपये देना है लेकिन मैंने उसको वो पैसा नहीं देकर किसी और को दे दिया है, इसका मतलब जो बैलेंस अमाउंट है वही हम पार्टनर्स को देंगे। जैसे कि इस कंडीशन में आपको देखा होगा कि टोटल 25,000 गौरी को देना था लेकिन हम 5,000 नहीं देंगे, सिर्फ 20,000 गौरी को देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने उसके बिहाफ पे 5,000 किसी को एज अ रिलेशन एक्सपेंस दे दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द journal entries related to the relation expense at the time of dissolution of partnership firm, and you can see that a lots of the cases are asked in the question number 2 और एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं and you have to prepared about it what type of the journal entry will be passed at the time of the dissolution of partnership firm related to the workman compensation reserve as well as the relation expense। केसेस देख लीजिए, पहला कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, हम मान लेते हैं फॉर्म ने को पे करना था, फॉर्म ने पे किया। दूसरे में फॉर्म को पे करना था, क्या ये कंडीशन नहीं दिया था किसको पे करना चाहिए था, पार्टनर ने पे किया, तो हम ये मान के चलेंगे फॉर्म करना था, फॉर्म को किया पार्टनर ने। तीसरे में फॉर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे पे कर दिया, यानी पार्टनर को पे करना था, फॉर्म को ने पे किया। चौथा केस है कि फॉर्म ने पार्टनर को एक फिक्स रेम्युनरेशन दिया। नेक्स्ट केस में फर्म ने एक फिक्स रेम्युनरेशन तय किया था पार्टनर के लिए लेकिन पार्टनर ने वो पैसा नहीं दिया रिलेशन का और उसके फर्म को देना पड़ा, तो पहले रेम्युनरेशन की एंट्री, फिर जितना पैसा पे किया उसकी एंट्री। एफ में ये था कि तो डिसाइड हुआ था टोटल रेम्युनरेशन में से टोटल रिलेशंस में कितना पार्टनर को कितना बेयर करना था फर्म को, तो पार्टनर को 10,000 बेयर करना चाहिए, फर्म को 5,000, टोटल फर्म ने पे किया तो 10 कर दिया। अपोजिट भी हो सकता है, इसलिए जर्नल एंट्री को रटने की जगह आपको जर्नल एंट्री समझना जरूरी है। सो प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 इन योर बुक, इन योर कॉपी प्रॉपर्ली, एंड प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 which is also based on the journal entries related to the relation expense at the time of the dissolution of partnership firm. So after solve the question number 1 and question number 2 which are related to the journal entries related to the workman compensation reserve and journal entries related to the relation expense at the time of the dissolution of firm, let's we move to the one more important concept related to the dissolution of partnership firm is treatment of goodwill। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये गुडविल का जो ट्रीटमेंट है ये चेंज इन पीएसआर के टाइम पे भी था, ये एडमिशन के टाइम पे भी था, रिटायरमेंट के टाइम पे भी था, डेथ के टाइम पे था, क्या अकाउंटिंग तो ट्रीटमेंट डिसोल्यूशन के टाइम पे भी है? यस, लेकिन यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है वो बाकी सारे चैप्टर्स से बहुत अलग है, क्योंकि यू नो वेरी वेल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिशन ऑफ a new partner, retirement of a partner, death of a partner, change in profit sharing ratio in existing partners, so it is an example of the reconstitution of partnership firm। इसमें बेसिकली जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था वो चेंज होता था और एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्रिएट होता था, तो उसके कारण से कुछ पार्टनर्स गेन करते थे, कुछ पार्टनर्स सैक्रिफाइस करते थे। सो इट इज द रूल ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, if any partner gain and if any partner sacrifice, so due to the reconstitution of the partnership firm, so in this situation sacrificing partner must be compensated by the gaining partner in their gaining ratio। तो चेंज इन पीएसआर के टाइम पे भी जो गेन करता था वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देता था कंपनसेशन के फॉर्म में अपनी गेनिंग रेशियो में। एडमिशन के टाइम पे न्यू पार्टनर गेन करता था, रिमेनिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर जो होते थे वो सैक्रिफाइस करते थे, तो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता था और रिमेनिंग पार्टनर को गुडविल देता था। रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में जस्ट अपोजिट होता था कि कोई पार्टनर लीव करता था फर्म को या छोड़ के जाता था ड्यू टू डेथ और रिटायरमेंट, तो रिमेनिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में उस डिसीज और रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देते थे। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता,
क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म तो खत्म हो रही है। तो यहाँ ओल्ड रेशियो जो है वो तो गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन न्यू रेशियो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म अब कंटिन्यू नहीं रहेगी, पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगी। तो ये सोचना जरूरी है इस टाइम कि एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये जो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल है, ये गुडविल वैल्यूड वाला गुडविल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई गेनिंग रेशियो होता है ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, क्योंकि यहाँ न्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। यानी एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म there is a no concept of the new ratio and old ratio, because partnership firm does not exist in future. So in this situation उस गुडविल का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ये जो अकाउंटिंग फॉर गुडविल है वो गुडविल है the goodwill which is already appear in the books। तो आपको याद होगा कि गुडविल दो होती थी, बेसिकली ट्रीटमेंट दो होता था। एक गुडविल जो वैल्यूड होती थी चीजें पीएसआर के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे, और एक वैल्यूड व्हिच आर ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। सो प्लीज नोट डाउन द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म which are already appear in the books. So accounting for goodwill, please note down, if any amount of goodwill already appear in the assets side of balance sheet, यानी अगर गुडविल की कोई भी अमाउंट ऑलरेडी अपीयर है किधर, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, यानी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म की तरफ के टाइम अगर कोई भी गुडविल एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो हो रही है, तो उस सिचुएशन में इट विल बी टेकन एज एन एसेट्स, इट विल बी टेकन एज एसेट्स, उसे हम एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे, एंड इट मस्ट बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और उसे ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। जैसे हम इनकी बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सट्री एसेट्स, वैसे ही यहां ट्रांसफर करेंगे और उसकी जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और सिमिलरली जब हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं तो ये गुडविल भी सोल्ड होती है मार्केट में, या तो इस गुडविल को कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है या तो रियलाइज हो जाती है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट यहां पे ध्यान रखने वाली है, सेकेंड का ए जिसे हम लोग बोलेंगे रियलाइजेशन ऑफ द गुडविल, if goodwill of the firm which is already appeared in the asset side of the balance sheet, goodwill is realized in cash, अगर गुडविल फर्म की जो है वो रियलाइज होती है कैश में या बैंक में, तो एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे हम बाकी एंट्रीज पास करते थे। इसको अलग से बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी कंफ्यूज्ड कि सर प्रीवियस चैप्टर में तो गुडविल एसेट साइड में होता था तो उसे ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर लेते थे, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा? नहीं, यहाँ पे गुडविल को जो एसेट साइड में शो हो रही है बैलेंस शीट में, उसे हम लोग क्या करेंगे, अदर एसेट की तरह ट्रीट करेंगे। एंड सेकेंड, इफ गुडविल इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर ये गुडविल कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो सिचुएशन में जनरल एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। So this is all about the accounting treatment of goodwill on the dissolution of partnership firm, and you can see that if
Goodwill already appear in the asset side of the balance sheet. At the time of the dissolution of partnership firm, it will be taken as an assets and it must be transferred to the realization account. अगर कोई पैसा रियलाइज हो रहा है गुडविल को सेल करने से तो कैश और बैंक टू रियलाइजेशन और पार्टनर के ऊपर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. So please note down this concept in your copy properly. So in today's video you can see that firstly we solved the question number 1 and the question number 2 of the practical questions given in your book, as well as we discuss about the accounting treatment of goodwill which already appear in the balance sheet. So आज के लिए इतना ही. Thank you, take care, goodbye.